ویلکم کرتے ہیں. یقیناً بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں ہو سکتے تھے، آپ کسی اور جگہ پر ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے مناسب جانا کہ آپ خداوند کے حضور آئیں. آمین. وہ کہ ہم تھوڑے ہیں پر خداوند کم زیادہ کو نہیں دیکھتا، خداوند ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. خداوند ایک کو بھی بچانے آتا ہے، خداوند دو کو بھی بچانے آتا ہے، خداوند تین کو بھی بچانے آتا ہے، اور خدا ہم سب کو بھی بچانے آتا ہے. آمین. ہم ایک دوسرے کا ویلکم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہوئے کہیں گے جیزس لوز یو. ہاں ذرا پنجابی چاکھاں گے یسو تانوں پیار کرتا ہے. آمین. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو آپ سے پیار کرتا ہے؟ آمین. سب بولیں گے ہاللیلویا. اگر آپ اس گرمی میں بیٹھ کر خداوند کی ستائش کر رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ خداوند ہمارا چرچ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اے سی ہو اور ہر جگہ سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو اور بڑے کمفرٹیبلی لوگ بیٹھے ہوں. اور پھر میں نے سوچا خداوند اگر تیری مرضی نہیں ہے، ابھی آپ نے ہمیں اے سی نہیں دی ہے تو گرمی ہے تو کوئی سوئے گا نہیں، سب جاگتے رہیں گے. گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے نا. سو خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ اس ماحول میں بھی خداوند کا کام کرنے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے آئے. وہ آپ کو اس بات کا اجر ضرور دے گا. آمین. سو بغیر دیر کیے خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. عموماً میں حوصلہ افزائی کا کلام سنایا کرتا ہوں یا برکت کا کلام سنایا کرتا ہوں، لیکن بہت دنوں سے خداوند نے یہ کلام میرے دل میں ڈالا ہے. آج تھوڑا سا الگ ٹاپک خداوند نے مجھے دیا ہے. میں چاہتا ہوں آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے ساتھ نکالیے گا باز کی کتاب بک آف ایکلیسیاسٹس چیپٹر 11 ورس 9 and 10. ہم باز کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں. آئیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے قدموں پر سب اور کلام مقدس کو عزت دینے کے لیے ہم خداوند کے حضور کھڑے ہو کر اسے پڑھیں. جی زاہد بھائی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. 11ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت. اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہل، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے. پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باتیں ہیں. آمین. کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر کلام کی بات کریں. خداوند اپنے کلام کے لیے استعمال کر تیرا جلال ظاہر. آمین. آپ سب بیٹھ سکتے ہیں. خداوند کی زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے واز کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت کا ہم نے مطالعہ کیا. اور اس کتاب کا مصنف اور لکھنے والا خداوند کا بندہ سلیمان ہے. وہ سلیمان جسے خداوند نے سب سے بڑھ کر حکمت دی، سب سے بڑھ کر سمجھ دی اور سب سے بڑھ کر عقل دی کہ وہ اپنے دور حکومت میں سلطنت کر سکے، اپنے دور حکومت میں خداوند کا نام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا سکے. سو اس نے کیا کہ دور دور سے لوگ اس کی شان و شوکت کو اور اس کی عقل کو سن کر اس کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ خداوند نے اسے برکت دی تھی، خداوند نے اسے حکمت دی. کیونکہ جب خدا خواب میں اس پر ظاہر ہوا تو خداوند نے اسے کہا مان تم مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو کیا چاہتا ہے سلیمان کہ میں تجھے دوں. سلیمان بھی بڑا ینگ تھا، نوجوان تھا. خداوند سے اپنی قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے حکمت مانگ. خداوند سے کہتا ہے خداوند مجھے وہ سمجھ دے جس سے میں تیری قوم کا کیا کر سکوں، فیصلہ کر سکوں، انصاف کر سکوں. سو خداوند نے اسے حکمت دی، خداوند نے اسے سمجھ دی، خداوند نے اس کی تربیت کی.
और फिर जब खुदावन ने अपना कलाम उस पर नाजिल किया तो वो लिखता हुआ आज आपको और मुझे सिखाता है। हम सब ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जब हमारे चौगिर्द हर तरफ हमें बदी नजर आती है, हर तरफ गुनाह नजर आता है, हर तरफ बुत नजर आते हैं, हर तरफ परेशानी नजर आती है, हर तरफ दुख और तकलीफ नजर आती है। खुदावन का बंदा यहां पर हमें खुदा से बरकत लेने के बारे में एक राज दे रहा है। और खास तौर पर आज जो हम नौजवान हैं, चाहे कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई मां है, कोई बाप है, हम सब नौजवानों से खुदा का कलाम हमें कहता है, ऐ नौजवान तू अपनी जवानी में खुश रह। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम सब जब नौजवान होते हैं तो हम खुश रहना पसंद करते हैं। खुदावंद का बंदा कहता है, ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी क्या कर, बहला, क्योंकि तुझे जवानी मिली है, तुझे मैंने इस दुनिया में भेजा है, अब तू इस दुनिया में पहुंच गया है। जवानी में बंदा जो है वो बड़ा खुश हो, सोना भी लगता है, जवान है, बड़ा पर्सनालिटी बड़ी चंगी है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी बहन है। खुदा ने बड़ा हुस्न जमाल दिया है, खुदावन ने बड़ी अकल दी है, खुदावन ने बड़ी दौलत दी है, खुदा ने बड़ी शान शौकत दी है। बड़ी अच्छी बात। खुदावन हम सबको बरकतें देता है और इसीलिए उसने हमें बुलाया भी है। आप सब पिछले हफ्ते में कलाम सुना रहा था कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो मैं एक बात कर रहा था कि हम भले क्यों हैं, हम खुदा से मोहब्बत क्यों रखते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें चुन लिया। खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। और आप अगर यहाँ पर हैं तो आप सिर्फ खुदा की मर्जी की वजह से हैं। खुदावन ने आपको बरगजीदा ठहराया, खुदा ने आपको दूसरी अक़वामों से चुन कर मसीह बनाया। आप मसीह खानदान में पैदा हुए, ये खुदा की मर्जी है। खुदा ने आपको ऐसे खानदान में पैदा किया जहां पर आपको मसीह की रोशनी मिल सकती है, जहां आपको वो नूर की तालीम मिल सकती है जो आपको तारीखी से जुदा करता है। आप अपनी मर्जी से मसीह खानदान में पैदा नहीं हुए, लेकिन जब आप पैदा हो जाते हैं, आप उस खानदान का हिस्सा होते हैं, तो जैसे ही आप जवान होना शुरू होते हैं तो खुदावंद का बंदा कहता है, ऐ नौजवान अपनी जवानी में खुश रह, क्योंकि ज्यादातर जवान जो है घर च कोई भी टेंशन हो अपने काम लगे होंगे हैं, उनको अपने कामों में खुश रहना होता है। खुदा का बंदा इसी आयत के हिस्सा में कहता है, उसके अय्याम में अपना जी भला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। जो कुछ तेरे दिल को अच्छा लगता है वो तू कर ले, तुझे आजादी है, क्योंकि खुदा ने तुझे आजाद मर्जी पैदा किया है। पहले तो तू अपने माँ बाप के कहने में होता है, पहले तो अपने वालिदैन की तालीम पर चलता है, उसके हुक्मों को फरामोश नहीं करता। पर तेरी जिंदगी का एक पहलू ऐसा आता है जब तू खुद मुख्तार हो जाता है, जब तू अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है कि अब मुझे दुनिया में चलने की अकल आ चुकी है, अब मुझे दुनिया में चलने की समझ आ चुकी है। अब पापा मम्मी आपको नहीं पता, हम न्यू जनरेशन है, हम इंटरनेट की जनरेशन है, हमें जो भी चाहिए गूगल से मिल जाता है, हमें जो भी ढूंढना है, कोई भी तालीम चाहवान जो नस्ल है वो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे ढूंढना चाहती है। और खुदावन का ये जो जिंदा कलाम है इसे पढ़ना दोबारा नहीं करता। खुदावन ने कहा, खुदावन के बंदा ने कहा कि तू सब अपनी जवानी में अपने दिल को फैला और अपने दिल की राहों में चल। जो तेरे दिल को अच्छी राह लगती है उसे चुन ले, खुश रह, अपने दिल को बहला, जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे पसंद है वो कर ले। लेकिन एक बात याद रख, तेरी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए कि जब से तू पैदा हुआ है तेरे मरने के दिन तक तेरी सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। खुदा आसमान से देख रहा है
उसकी नजर बदों पर भी है और नेकों पर भी है, बरगजीदों पर भी है और जो खुदा से दूर है उन पर भी है। जो कुछ आज हम इस दुनिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए कर रहे थे, बैंकॉक में रहते हुए कर रहे हैं, या अगली कंट्रियों में जाकर करेंगे, खुदावन की हम सब पर नजर है। हम सब को खुदावन देख रहा है। वो कहता है जो कुछ तेरे दिल को अच्छा लगता है तू कर ले। आज तेरे पास मौका है, आज तुझे आजादी मिली है, तू जो कुछ करना चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी कर ले। लेकिन तू याद रख कि इन सब बातों के लिए तुझे खुदा के हुजूर आना है। क्या लिखा है? अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। हम सब का इंसाफ बहुत जल्द होने वाला है। खुदावन यीशु मसीह बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं। अभी बहन दुआ करते हुए कह रहे थे कि खुदावन हमको तैयार कर कि हमारी कुप्पियों में तेल हो। हम बगैर तेल लिए कुप्पियों हाथों में लिए हुए तेरा इंतजार ना करें, बल्कि हम तैयार हैं। ये वक्त खुदावन ने हमें जमीन पर तैयारी कर दी। आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमें पता है क्या हलाल है और क्या हराम है। हमें शरा की सब बातें पता है, क्योंकि हम नौजवान हैं, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हम अपनी आंखों की मंजूरी में चलना पसंद करते हैं। हम खुदा के हुजूर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, आप जितने घंटे आज खुदा के हुजूर गुजार रहे हैं, दिस इज रिकॉर्डेड। ये भी खुदा के हुजूर लिखे जाएंगे। अगली आयत में लिखा, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। ये दोनों खत्म हो जानी है। आज किसी बडेरे के पास बैठे ना तो अपनी जवानी के किस्से सुनाता है। मैं बड़ा जवान सा, मैं ऐ कीता, मैं ओ कीता। अगर उससे पूछा जाए कि कितने साल गुजर चुके हैं, वो कहता है अभी लम्हा ही तो गुजरा है, थोड़ा सा वक्त ही तो गुजरा, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया। जिंदगी में सबसे तेज चलने वाली चीज वो वक्त है। आपको यहाँ पर 6-6, 7-7 साल हो गए, आप पीछे देखें आपको लगता है पिछले महीने आए, यहाँ भी तो आए हैं, 7 साल गुजर गए। छोटे छोटे बच्चे थे, इतने जवान हो गए। क्योंकि वक्त वो चीज है जो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए खुदा कहता है कि जवानी के अय्याम में जो कुछ तू करना चाहता वो कर, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए तू अदालत में आएगा। आपको एक मिसाल की तरफ लेकर चलता हूं। मेरे साथ पहला सैमुएल खोलिएगा और पहले सैमुएल में कहानी पढ़ते हैं, पुराने यादनामा में ही है। पहला सैमुएल जाहिद भाई 2 बाब की 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाइएगा और मैं बोलते जाऊंगा। यहां पर एक बड़ी खास कहानी मिलती है। यहां पर ऐसे नौजवान हैं जिनका बाप काहिन है, जिनका बाप कहानत का काम करता है, जिनका बाप पादरी है। वो हैकल में काम किया करता है, खुदावन की हुजूर खिदमत गुजारी का काम करता है। और काइन के बच्चे काइन होते हैं, पादरी के बच्चे पादरी होंगे। लेकिन यहां पर ये लड़के काइन के बच्चे होते हुए कुछ गलत काम कर रहे हैं। 22वीं आयत से पढ़िएगा भाई। और एली बहुत बूढ़ा हो गया था। और एली बहुत बूढ़ा हो गया। ये एली काइन था सैमुएल के वक्त का। और उसने सब कुछ सुना जी कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या किया करते। उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से किया क्या करते थे। ये करते क्या थे कि खैमा इज्तिमा में, जहां पर हैकल में इनका बाप कहानत का काम किया करता था, वहां पर जो औरतें आया करती थी उनसे बदफेली किया करते थे। होते काइन के बच्चे हैं, लेकिन उनके साथ ये हरामकारी में मुलव्वस थे। और ये बात कभी छुपी नहीं रह सकती। हम नौजवान होते हुए जो भी काम करते हैं वो आज या कल खुल के सामने आता है। और वैसा ही आज
हम पढ़ते हैं कि एली काइन के बच्चों के साथ भी हुआ। उसने कहा कि मैं पूरे इस्राएल से क्या सुनता हूं, और उसने उनसे कहा तुम ऐसा क्यों करते हो जी क्योंकि मैं तुम्हारी बदयानतियां तमाम कौम से सुनता हूँ। जी। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी करते उन हो। औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थी, हम गोश करते थे, और उसने उनसे कहा तुम ऐसा क्यों करते हो। जैसे ही वो बदफेली करने लगे, बाप तक ये बात पहुंची। नौजवान थे, यंग थे, अपनी आंखों की मंजूरी में चलना पसंद करते थे। अपने दिल को जो कुछ अच्छा लग रहा था, बाप के नाम को भी खराब करे। बाप काहीन है, लोगों की कहानत करता है, खुदा की हुजूर खिदमत करता है, लेकिन जब जो ही बच्चे नौजवान हुए, वो शरअ को समझने लगे हैं, उनको आजादी थी, वो हैकल में रहकर अपने बाप का हाथ बटा सकते थे। जो ही बड़े हुए, कोई भी औरत वहां पर खिदमत करने आती, बुरी नजर रखने लगे, यहां तक कि उनके साथ बदफेली करने लगे। और जैसे ही एली को पता चला, वो गमनाक हुआ। बाप ने अफसोस किया और वो कहने लगा, और उसने उनसे कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बददयानतियां तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, यहां पर वो समझा रहा है कि जो कुछ कर रहे हो इसका नतीजा जरूर मिलेगा। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अच्छे काम का नतीजा अच्छा और बुरे काम का नतीजा बुरा। आज नहीं तो कल जरूर सामने आना है। और वो कहने लगा नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। आगे, तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। एक तो खुद उस बदी का हिस्सा बनते हो, और दूसरी जो बहनें वहां पर आती हैं, जो औरतें खुदा की खिदमत करने आती हैं, उनके साथ हरामकारी के सबब से उनको भी मुलव्वस कर लेते हो। और जब तुम उनको मुलव्वस करते हो तो खुदा के लोगों से भी तुम बदफेली कराते हो। ना सिर्फ जो गुनाह तुम कर रहे हो उसकी सजा मिलेगी, बल्कि जो तुम करा रहे हो उसका गुनाह भी तुम्हारे सर आएगा। आगे क्या लिख रहा भाई? अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करे। बाप उनको समझाते हुए एक बात समझाता है कि मेरे नौजवान बच्चों, अगर कोई आदमी का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा। आज अगर मैं आपका गुनाह करूं या आप मेरा गुनाह करें, तो हम सबका इंसाफ कौन करने वाला है? खुदा करने वाला। उनको समझाते हुए कहता है, फिर क्या बोला भाई इसमें? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना। जब बाप समझाने लगा है कि तुम, जब इंसान का गुनाह करे तो खुदा इंसाफ करता और खुदा माफ भी करता है, क्योंकि वो माफ करने में कादिर है। आमीन। लेकिन यहां पर वो कहता है बावजूद तुम्हें समझाया है, बच्चे नहीं मुड़े उस काम से, वो अपनी बदी से बाज नहीं आए। क्योंकि नौजवान अपनी जवानी में क्या हो, खुश हो, और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, और अपने दिल को क्या कर, बहला। जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। और वैसा ही एली काइन के बच्चों ने किया। फिर क्या हुआ भाई? उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। उन्होंने अपने बाप का कहा ही नहीं माना। बाप काहीन है, वो दुख में है, रंज में है, परेशान है। नौजवान बेटे उनको बचाना चाहता है कि जो बदी तुम कर रहे हो ये इंसानों के खिलाफ नहीं है, ये बदी तुम खुदा के घर में कर रहे हो, ये बदी तुम हैकल में कर रहे हो, ये बदी तुम खुदा के हुजूर कर रहे हो, तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मेरी बात को जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर कि एली काहिन ने अपने बच्चों को समझाया, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। एली काहिन को भी इस बात की सजा मिली। एली काहिन को भी खुदा ने सजा दी है। आगे पढ़िएगा भाई, क्या लिखा है? और वो लड़का सामुएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। आमीन। यहां पर एक और लड़के की बात है। दो लड़के ऐसे हैं जो एक पादरी के, एक प्रीस्ट के बच्चे हैं, जिन्होंने सारी उम्र अपने बाप को कहानत करते देखा है, पर चलना अपनी आंखों की मंजूरी में पसंद किया। जो कुछ बाप ने सिखाया है उन्होंने उससे रद्द कर दिया।
अपने बाप को बातों को नाफरमानी करते हुए खुदा को भी रद्द कर दिया। ना सिर्फ अपने वालिद को बल्कि खुदा को भी रद्द किया और वो काम किया जो खुदा की नजर में बुरा था। और जैसे ही उन्होंने वो काम किया है तो खुदा उनको मार डालना चाहता है। दगाबाज ते खूनी कदी अद्धी उम्र ना पावे, सच्चे नु हमेशा तीकर कदी ना तिलकन देवे। खुदावन का बंदा दाऊद लिखता हुआ हमें बहुत साल पहले सिखाता है कि जब हम खुदा से दगा करते हैं, जब हम खुदा के हजूर बदफेली करते हैं, हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, तो वो हमारी जिंदगियों के दिन को भी घटा देता है। फिर हमें ना आगानी मौत भी आती है। मैं नहीं कहता कि कितना सच है इस बात में, हम सब जानते हैं। हमें हिस्किया की बात याद है, वो खुदावन के हजूर आया और कहने लगा, खुदावन मैंने तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए, तू मुझे क्यों मारना चाहता? मेरी जिंदगी के अयाम तू क्यों खत्म करना चाहता? याद कर के मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, याद करके मैंने तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए। खुदावन को याद आया। खुदावन ने कितने साल बढ़ा दिए? 15 साल खुदावन ने उसको और दे दिए। जब हम खुदावन की मर्जी पर चलते हैं तो वो हमारी उम्र को दराज करता है। जब हम खुदावन की बातों पर अमल करते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं और खुदा के फर्माबरदार होते हैं तो वो हमारी जिंदगी के दिनों को बढ़ा देता है। और जब हम खुदा के नाफरमान होते हैं, खुदावन ने तो हमें जिंदगी दी है। यीशु मसीह आए, वो कहते हैं मैं आया, मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। खुदावन हम सबको कसरत की जिंदगी के लिए खुदावन ने हमें सबको चुन लिया। अब हमें जब आजाद मर्जी बनाया तो खुदावन का बंदा हमें लिखता है कि जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, और जो कुछ तेरे दिल को अच्छा लगता है अपने दिल को भी फैला ले और उस राहों पर चल ले। लेकिन याद रख के इन सब बातों के सबब खुदा तुझे अदालत में लाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है हर निकम्मी बात का तुझे जवाब देना पड़ेगा। बहुत बार मेरे अजीजों हम बोलते वक्त सोचते ही नहीं, जो कुछ हमारे मुंह में आता है हम बोल जाते हैं, और ये कलाम बोला गया है तो अमल होता। खुदावन ने अपना दम हमारी जिंदगियों में फूंका और हम जीती जान में, इसलिए हम जो बोलते हैं वो असर करता है। हम जो कुछ बोलते हैं वो असर पजीर होता है, क्योंकि ये कलाम अभी मैं बोल रहा हूं तो ये असर करेगा, क्योंकि जो बातें मुंह से बोली जाती हैं वो असर करती हैं। सो जब हम नौजवान होते हैं तो हम खुदा की उन राहों को तर्क कर देते हैं। यहां पर एक और नौजवान की जिंदगी पे हम गौर करते हैं, सैमुएल। ये वो सैमुएल है जो हन्ना का बेटा है, जिसे खुदा ने हन्ना की उस दुआ को सुनकर उसे दिया है जब वो हैकल में एली काहिन के आगे रो रही थी, खुदावन के आगे रो रही थी और कहने लगी कि खुदावन अगर तू मेरे दिल की मुराद को पूरा करे, अगर खुदावन तू ऐसा कर दे जो मैं चाहती हूं, तो मैं अपने बेटे को, अपनी औलाद को तेरे नजर कर दूंगी। और उसने वैसा ही किया। आज हमारे माशरे में भी बहुत सारी माएं हैं, बहुत सारे वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खादमीन बने, उनके बच्चे खुदावन की खिदमत करे, वो पादरी बने, वो मुर्शद बने, वो खुदा के खादिम बने। लेकिन जो हुई वो बड़े होते हैं वो माँ बाप के ही फर्माबरदार नहीं है, वो खुदा के और वालिदैन के दोनों के नाफरमान हो जाते हैं। चाहिए तो ये कि वो खुदा के हुजूर वफादार रहें और उनके वालिदैन उनको वो कुछ सिखाएं जो खुदावन की मर्जी के मुताबिक है। हन्ना ने उस बच्चे को जब उसने दूध पीना छोड़ दिया तो उसे हैकल में लेकर आई है। जब उसे हैकल में लेकर आई है तो वो वहां पर तालीम हासिल करने लगा। यहां पर एक और काहिन के बच्चे हैं जो अपने बाप को देखते हैं कि उसने सारी उम्र खुदा की खिदमत की है, सारी उम्र उसने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया है, और जब वो बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे में क्या नाम रोशन कर रहे हैं, उसके नाम को क्या लाज लगा रहे हैं। आज हम भी जब नौजवान हैं तो खुदावन आपसे और मुझसे ये बात करता है कि नौजवान जो कुछ तू करना चाहता है वो तू कर ले। आज तेरे पास मौका है, आज तेरा वक्त है, आज मैंने तुझे आजाद किया, जो तुझे पसंद है वो कर ले। आज मैंने जिंदगी और मौत को तेरे सामने रखा,
पर मेरी मर्जी यह है तू जिंदगी को ले ले ताकि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहे। लेकिन हम क्या कर जाते हैं, हम हाल को देख रहे होते हैं, हम मुस्तकबिल को सोचते ही नहीं कि खुदावंद अदालत वाले दिन जब हमसे पूछेगा कि इन सब बातों का, इन सब चीजों का, जब मैंने तुझे वक्त दिया तूने मेरे बेटे मेरी बेटी क्या किया। मैं तुझसे आज ये सवाल करता हूं कि जब मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे बरकत दी, मैंने तुझे खड़ा किया, मैंने तुझे अकल दी, मैंने तुझे सही सलामत बनाया है, फिर तूने वो काम क्यों नहीं किया जो मैं चाहता था। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम मफलूज नहीं हैं, हम अपाइज नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं वो पैदाइशी अपाइज होते हैं, या उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो अपाइज हो जाते हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, वो काम नहीं कर सकते जो हम एक सलामत इंसान कर सकते हैं। खुदावन आज आपसे और मुझसे बात, खुदावन आज आपको और मुझे ये सिखाता कि आज जब हम अपनी आंखों की मंजूरी में चल रहे हैं तो एक दिन जरूर आएगा कि खुदावन आपसे भी पूछेगा, खुदावन मुझसे भी पूछेगा और हम सब से पूछेगा कि तुम लोगों ने दुनिया में रहते हुए जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें भेजा तुमने क्यों पूरा नहीं किया। खुदावन यीशु मसीह का हुक्म अजीम है कि जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या आज हम शागिर्द बना रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि शागिर्द वो बनाता जो पहले शागिर्द होगा, जो पहले टीचर होगा वो किसी को टीच करेगा। क्या आज हम सीखते हैं कि आज हम ये कलाम मुकद्दस अपनी औलाद के ज़हन नशीन कर रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो आने वाला मुस्तकबिल है, जिन्होंने पासबान बनना है, जिन्होंने कौम की खिदमत करनी है। क्या हम सैमुएल की तरह, हन्ना की तरह अपने बेटों और बेटियों को उस इंस्टीट्यूट में, उस इदारे में, उस दरसगाह में भेजते हैं जहां पर खुदा का कलाम सिखाया जाए। और जब सैमुएल खुदा का कलाम सीखने लगा तो लिखा है कि वो लड़का सैमुएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों की मकबूलियत उसे हासिल हुई, क्योंकि खुदा उसके साथ था और वो उन राहों पर चल रहा था, वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा था जो खुदा के एंड कलाम के मुताबिक था। एलीकाइन के बच्चे भी नशोनुमा पा रहे हैं हैकल में, और सैमुएल भी वही नशोनुमा पा रहा है, लेकिन वो ऐसा जवान है जो अपनी आंखों की मंजूरी नहीं बल्कि इस आंखों की मंजूरी में चलता है। वो इस कलाम को, जो शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, और वो अपना ध्यान इस किताब में लगाए हुए है। जब भी उसकी जिंदगी में कोई आजमाइश आती वो किताब उठाता और पढ़ना शुरू कर देता। जब भी उसकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती किताब उठाता और पढ़ना शुरू कर देता। जब भी उसकी जिंदगी में कोई दुख आता किताब उठाता और पढ़ना शुरू कर देता। जब भी किसी आजमाइश में आता किताब उठाता और पढ़ना शुरू कर देता। वो अपनी आंखों को खुदा के कलाम में गाड़े हुए है, वो अपने नजरिए को, अपनी राहों को खुदा के कलाम पर लगाए हुए है, और वो अपने दिल को बहलाना भी खुदा के कलाम से चाहता है। इसीलिए खुदा ने उसे मकबूल भी किया और वो कौम बनी इसराइल का नबी भी ठहरा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जवानी खुदा के नाम पर। मुबारक है वो नौजवान जो जवानी में खुदा को अपना दिल देते। खुदा के कलाम में लिखा है नौजवानी के फरजंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। और जब आप नौजवान होते हैं तो आप खुदा की खिदमत और जाफिशानी से कर सकते हैं। आप वो काम कर सकते हैं जो हमारे बुजुर्ग नहीं कर सकते। उस वक्त बुजुर्गों के पास तजर्बा बहुत होता है, लेकिन वो भाग कर पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। हम चढ़ सकते हैं। वो बैठकर आइडिया ले सकते हैं कि तुम ऐसा कर लो, तो हम वैसा कर सकते हैं। आज आप अपनी जिंदगियों में ध्यान करें कि हम कहां पर हैं, आप क्या कर रहे हैं। आखिरी हवाला पढ़ के मैं खुदा के कलाम को खत्म करने की तरफ जाऊंगा। मेरे साथ मुकाशवा की किताब में चलो, आखिरी हवाला पढ़ेंगे 2 बार। चौथी 5वीं आयत जाहिद भाई पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने
खुदावन यीशु मसीह उस वक्त इफसस की कलीसिया को और आज हम सबको कह रहे हैं कि तुम खुदावन के हुजूर आते हो, कलाम मुकद्दस भी पढ़ रहे हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मुझको तुझसे एक शिकायत है। वो क्या है? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। कि तूने अपनी पहली सी क्या छोड़ दी है? मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और तौबा करके पहले की तरह काम कर। खुदावन यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ये मुकाशफत की किताब जो है वो यूहन्ना से लिखवा रहे हैं, और जब यूहन्ना को कह रहे हैं कि इफसस के फरिश्ता को, यानी वहां के खादमीन को, जो बाऊ पादरी है उसको लिख, वहां की कलीसिया को लिख, और आज खुदावन हमें लिखता है और कहता है मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ये कौन सी पहली सी मोहब्बत है? ये वो वाली मोहब्बत है जब हमें पता चला था कि यीशु मसीह ने मेरा कफारा दे दिया है, यीशु मसीह ने मेरे तमाम तरुण गुनाहों को माफ कर दिया है जो मैं खुद से माफ नहीं कर सकता था। तो हम कितने शादमान, हम कितने खुश थे, हम कितने पुरजोश थे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि मेरे ऐसे पोशीदा राज, ऐसे पोशीदा गुनाह जो मैं कभी खुद से माफ नहीं कर सकता था, यीशु मसीह आपने सलीब पर माफ कर दिया। और आप अपनी जिंदगियों में तैयार होते हैं कि अब मैं बपतिस्मा लेने वाला हूं, अब मैं तौबा करने वाला हूं, अब मैं खुदा के रूह को हासिल कर कर खुदा की खिदमत करूंगा। आप खुदा के हुजूर बैठकर खुदा के साथ बहुत सारे वादे करते हैं कि खुदा मैं ये भी करूंगा तेरे लिए, खुदा मैं वो भी करूंगा। लेकिन जब आप जिंदगी में चलना शुरू करते हैं तो इब्लीस आपकी जिंदगी में वो सब चीजें लेकर आता है जो आपकी आंखों को अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, जो आपके दिल को बहलाना शुरू कर देती है। आप उस मोटिव को, उस मकसद को भूल जाते हैं जो आपको खुदावंद यीशु मसीह ने पहले दिन दिया था। जब आपको पता चला था कि मैं मसीह खानदान में क्यों पैदा हुआ, क्योंकि यीशु मुझे इस्तेमाल करना चाहता, खुदावंद आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए आप मसीह की मोहब्बत को जान गए थे। और जैसे ही आपने मसीह की मोहब्बत को जाना तो आप उसके हुक्मों को अमल, उसके हुक्मों पर अमल करने लगे थे। जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर क्या करेगा? अमल भी करेगा। और जब आप ऐसा करने लगे, खुदा ने कहा मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और साथ में कहता है कोई गल नहीं, मैनू पता है इब्लीस तुम्हारे पीछे लगा, मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी जिंदगियों में ऐसी आजमाइशें ले आता, वो तुम्हारे पीछे पीछे रहता है कि मैं इसे किसी तरह से ट्रैप करूं जैसे उसने हवा और आदम को किया। वो हमारी जिंदगियों में ऐसे मिसाइल और ऐसी मुश्किलें लेकर आता है जब हम उनमें फंस जाते और आजमाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरी कलीसिया, तुम मेरी भेड़े हो, मैं तुम्हारे दिलों को जानता हूं, मैं तुम्हारे ख्यालों से वाकिफ हूं, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, मैं तुम्हें इन बातों का हल बताता हूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं, कोई बात नहीं, जो भी तुमने चल लिया है अपनी आंखों की मंजूरी में उसे भूल जाए। आपने पास्ट में जो कुछ भी कर लिया है उसे भूल जाए। मुझे शिकायत तो है तुझसे कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी जो तू मुझसे रखता था, जो तू जज्बा मेरे साथ रखता था, जो पैशन तेरी रगों में मुझे कबूल करने के बाद आया था, जो तहरीक रूल कुद्स ने तेरी जिंदगी में डाली थी, तू उसे भूल चुका है, तू उसे छोड़ चुका है। लेकिन मैं तुझे फिर मौका दे, मैं तुझे फिर आज के दिन याद दहानी कराता हूं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से, उस दिन को याद कर ले कि जब तू बचाया गया था, जब तेरा कफारा हुआ था। कोई बात नहीं, सादिक 7 बार गिरता और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर पड़ा रहता है। क्या तू अपने आप को शरीर बनाना चाहता है? क्या तू ऐसी लिस्ट में आना चाहता है कि किताबे हयात से तेरा नाम ही खारिज कर दिया जाए? नहीं, खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावन चाहता है कि सब की तौबा तक क्या पहुंचे? नौबत पहुंचे। खुदा तमाम बनीनो इंसान से प्यार करता है। उसने किसी मसीह का कफारा नहीं दिया, उसने तमाम बनीनो इंसान का कफारा दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो तो आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए पहले ही सलीब पर कुर्बान हो चुका है। बस आपको कहता है कि मैं एक राज की बात और हल बताता हूं।
बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और क्या कर। मेरे साथ ये आयत पढ़ेगा, बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावंद फिर मौका दे रहा है आपको और मुझे। हम सब यंग हैं, हम नौजवान हैं, हम अपनी कुशीदा बातों को पर्सनली जानते हैं। मैं यहाँ पर किसी को हिट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके सामने खुदा का कलाम रखना चाहता हूँ। आप यहाँ पर एक्सीडेंटली नहीं बैठे हो, खुदावन का मौका था, खुदावन ने आपको तहरीक दी तो आप इस जगह पर आए हुए। ये कलाम आपकी जिंदगियों के लिए, खुदावन ने ये कलाम आज जो मेरी जिंदगी में रखा वो आप सब के लिए। खुदावन यीशु मसीह हल दे रहे हैं कि अब भी वक्त है। ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद हो जाए और फिर बाकी कबारियां दरवाजा खटखटाती रहें और दरवाजा ना। गीत अक्सर गाया करते थे, अद्धी रात नू तेल लैन चलियां, लाड़े बोटियां तैयार आके मलियां। अगली लाइन मुझे भूल गई कि जब हम तैयार होते हैं तो खुदावन वक्त पर आता है। देखो बुआ बंद होया, हुन रह गई ने सुस्त खबर। हम सब अपनी जिंदगी की बात जानते हैं। खुदावन ने मौका दिया है कि बस तू तौबा कर और पहले की तरह क्या कर। खुदावन आप सबको चाहता है कि आप पहले की तरह बेदार हो जाएं, उसकी उस मोहब्बत के तजर्बा में वापस चले जाएं अपनी जिंदगी में। मैं चाहता हूँ आप अपना पहला दिन याद करें कि जब आपने मसीह को कबूल किया था, कैसा पैशन था आपकी जिंदगी। बपतिस्मा ले लिया, खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लिया, रूह हक हासिल कर लिया। खुदावन मैं ऐसा करूंगा, खुदावन मैं ये करूंगा। अक्सर हम गीत गाया करते थे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। गाइए, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। मुझे शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आज भी मौका है। हम उनसे अच्छे नहीं जो कोरोना वायरस से टुर गए। हाँ, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां डरना ही चारे मार गए कि सानू होना जाए, पता नहीं होना सी कि नहीं, वो डरना ही मार गए। इसलिए खुदावत कहता फौफा कर। खुदावन ने आपका और मेरा फिदिया दिया हुआ। ईसाया 43 में लिखा है कि उसने आपका और मेरा नाम लेकर मुझे बचाया, आपको बचाया। वो कहता है मैंने तेरा फिदिया दिया, फिक्र ना कर, तू मेरा है। आप सब खुदावन यीशु मसीह के हाथ में है। आप सब की शक्ल खुदावन खुदा ने अपनी हथेली पर खोद रखी। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है, वो बार मौके दे रहा है। क्यों खुदावन वक्त लेकर आ रहा है? वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। मत सोचे लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, मेरा भाई मेरे बारे में क्या कहेगा। वो यहाँ तो बड़ा बहू बनया फिरता है, यहाँ तो बड़ा पादरी बनता है, ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन जब आपको खुदावन खड़ा करता है तो फिर खुदावन आपको कामयाब भी करता है। जैसे खुदावन ने सैमुएल को खड़ा किया, जैसे ही सैमुएल खुदावन के हुजूर चलने लगा तो खुदावन ने उसको आवाज दी, सैमुएल तो कहाँ? वो खुदावन की आवाज सुनने आज आपके लिए खुदावन की आवाज है। और वो कहता है बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और खुदावन फिर हमें एक वार्निंग भी देते हैं। खुदावन जिनसे प्यार करता खुदावन को छांटता भी। हाँ, खुदावन हमें वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। चिरागदान कलीसिया को कहा गया काश। और हम सब कलीसिया, हम सब अपने घर के जिम्मेदार।
हम सब नौजवान हैं। खुदावन के बदा ने 2000 साल पहले ये बातें हम तक पहुँचाएं। 2000 साल से पहले की बातें हैं, जब सुलेमान, और आपको सुलेमान की एक बात बताकर मैं काम की तरफ पहुँचता हूँ। खुदावन ने बहुत हिकमत दी, हिकमत ट्रांसफर कर रहा है। दाऊद से सल्तनत सुलेमान को मिली, सल्तनत कायम हुई, बहुत बरकत पाई, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी दाऊद ने भी और उसके बाद सुलेमान ने भी। जितनी हिकमत खुदा ने सुलेमान को दी थी, उसकी औलाद ने भी उस पर अमल नहीं किया। उसकी औलाद ने वो किया, अपनी जवानी में जो उनको अच्छा लगा वो खुश रहे, अपने दिल को बहलाने लगे उन बातों को जो उनको अच्छी लगी, उनकी आंखों को जो अच्छी लगती थी वो इस सब कुछ करने लगे। और आपको पता है कि इस्राएल का वो वक्त बहुत ज़वाल का था, जब उनके अपना ही खानदान बट गए, जब उनके अपने ही कबीले 10 एक तरफ चले गए, 2 एक तरफ चले गए, किंगडम ही डिवाइड हो गई। आप सोचें कि एक बादशाह जिसे खुदावन ने तमाम दुनिया से बढ़कर हिकमत दी, उसकी औलाद कैसे फेल हो सकती? एक सबब कि वो नाफरमान थे, और सबसे बढ़कर वो खुदा के नाफरमान थे, इसीलिए खुदा का हाथ नहीं था। आज खुदावन आपसे बात करना चाहता है कि बस मौका है, हमारी जिंदगी में क्या है हम सब जानते हैं। मैं चाहता हूँ अपने कदमों पे खड़े हो, आइए खुदावन के हुजूर इन बातों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन अगर मुझ में कोई गलती, कोई मिस्टेक है, I will request Pastor Andre to come and give the altar call, that if somebody giving your life to the Lord today, to listening this word of God, that we have to repent and come back to home, come back to the Lord. ये वक्त हमारे पास है, अपनी आंखों को बंद करते हुए आप अपने दिल को खुदावन के आगे रखना शुरू कर दीजिए। आपके दिल को खुदा जानता है। मैं चाहता हूं कि कोई आंख खुली ना रहे, अपने दिल को खुदावन के हुजूर रखें। दुनिया की भीड़, मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को, वो आपको ढूंढने आया जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न पर। ये वक्त है सोचने का कि खुदावन मैं ख्याल करता हूं कि मैं तेरी मोहब्बत के किस दर्जा से नीचे गिरा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम बहाल करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू आज हमें मौका बख्श रहा है कि हम तेरे साथ अपने रिश्ते को बहाल कर लें। थैंक यू जीसस।